A very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. So today we will study about e-learning and online learning. In the last class, we had discussed about the different types of digital learning. And today we are going to see in the different types of digital learning. In detail, we will study about the e-learning and online learning. All of you, please switch off your audio. Switch off your audio, please. So, e-learning. What is e-learning? So, in the e-learning, the students and the teacher interact online in this type of learning. Students take a course from the teacher without physically visiting an actual classroom with him or her. Both of them communicate and learn the courses online even if they are on the same premise. Even if a teacher is in the same premise, it is in the same campus, but then also the teacher is delivering the class using the internet. And so this can be e-learning. Those students can use offline materials like paper to send their response. They are connected with their teacher through an internet connection only. It may be that teacher is sending the learning material through internet, but students can give responses. यानी कि teacher भले ही जो है जो मटेरियल है, विषय वस्तु है, वो इंटरनेट के द्वारा स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि वो ये इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही वो रिस्पॉन्सेस को दे, वो ऑफलाइन मटेरियल्स का भी यूज करके टीचर्स को दे सकते हैं. ऑफलाइन मटेरियल में आप हो सकता है कि वो सीडी के फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर टाइप करके उसको हार्ड कॉपी निकाल के उस फॉर्म में भी वो दे सकते हैं. ओके, तो इसमें जरूरी नहीं है कि इंटरनेट का कनेक्शन हो ही, ये जरूरी नहीं है. इंटरनेट का कनेक्शन हो भी सकता है कि स्टूडेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सेज ऑनलाइन भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि स्टूडेंट्स जो है इंटरनेट का यूज ना करके वो दूसरे रूप में रिस्पॉन्सेज को वो दे रहे हैं. और they can send the picture of their response online to their teacher. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना रिस्पॉन्स का पिक्चर लेकर उसे टीचर को वो दे सकते हैं. तो इसे हम ई लर्निंग कहते हैं. ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. That is, we create the learning material in the form in the electronic form. So that is called e-learning. Now there are so many types of e-learning, and mainly the 10 different types of e-learning are, we'll see, computer managed learning. It means that in which the learning is taking place, the computer is managing the learning. Like now the learning is taking place among us, between us, okay, with the help of the computer. So that is computer managed learning is there. Computer assisted instruction is there, means with the help of computer the instruction is given to the students, the teaching is done. Synchronous online learning. Now what is synchronous online learning? Like now when the teacher is present, all the participants are also present at the same time. So like for example now when I am teaching, the students are also present online in the same time, then this is called the synchronous online learning. Now asynchronous online learning is what? It may be that the delivery of the learning material can be given on the website, or it is can be different forms, and students in their own pace, means जब उनका मन करे तब वो
ऑनलाइन मटेरियल को वो ले सकते हैं और उससे लर्निंग वो कर सकते हैं। यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स का एक ही समय जब नहीं होता है, शिक्षक जो है लर्निंग मटेरियल को तैयार करके वो भेज देते हैं, वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। तो और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो जब अपने समय के अनुसार उसे खोलकर वो वहां पढ़ते हैं, तो इसे हम एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। फिक्स्ड ई लर्निंग, बिल्कुल फिक्स्ड रहता है सब कुछ, तो इसे हम फिक्स्ड। एडेप्टिव ई लर्निंग का मतलब है कि जैसे लर्नर्स हैं उसके हिसाब से हम अपने जो भी ई लर्निंग हो रहा है उसके हिसाब से उसमें हम बदलाव करते हैं, और लर्नर्स के हिसाब से उसमें जब बदलाव किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड द एडेप्टिव ई लर्निंग। लीनियर ई लर्निंग का मतलब है कि बिल्कुल सीक्वेंस में जाना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसे हम लीनियर ई लर्निंग कहते हैं। इंटरैक्टिव ऑनलाइन लर्निंग का मतलब है कि ऐसा लर्निंग जहां पर इंटरैक्टिव हो। अगर आप लोग से हम क्वेश्चन पूछें तो आप लोग जो है इसका जवाब अपना ऑडियो ऑन करके दे सकते हैं, so there can be interaction, so that is called the interactive online learning। and individual online learning ऐसा है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जगह में आजकल ट्यूशंस लोग लेते हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। ओके, तो इस तरह का जो लर्निंग है इसे हम इंडिविजुअल ऑनलाइन लर्निंग है, यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जब लर्निंग होता है तो इसे हम इंडिविजुअल ऑनलाइन लर्निंग यानी कि व्यक्तिगत ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। और कोलैबोरेटिव ऑनलाइन लर्निंग का मतलब है कि जितने भी हैं लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी जो हैं लर्निंग में मदद कर रहे हैं, सबकी सहायता से, सहयोगी। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सहयोगी, सहयोगी ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो भी मदद कर रहे हैं लर्निंग में, तो इसे हम कोलैबोरेटिव ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। ना ऑनलाइन लर्निंग में हम देखेंगे द मेन एलिमेंट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इज टू गेट लर्निंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि ऑनलाइन लर्निंग में सबसे प्रमुख तत्व क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको लर्निंग तभी संभव हो पाता है जब हम इंटरनेट कनेक्शन है। ओके, तो इसमें ऑनलाइन लर्निंग में इंटरनेट कनेक्शन का होना सबसे जरूरी है। द मैम स्टूडेंट पिछला स्लाइड एक बार फिर से दिखाइए ना। क्या? पिछला स्लाइड बस दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना था। ओके, हो गया मैम। तो ऑनलाइन लर्निंग में सबसे प्रमुख तत्व क्या है कि लर्नर्स और जो दे रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग यानी कि इंस्ट्रक्टर या टीचर, दोनों के लिए ही ऑडियो प्लीज बंद कीजिएगा, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो। whenever you want to ask question then only you switch on the audio. The main element of online learning is to get learning experience by using an internet connection. The students have to use certain techniques to get this learning experience. अब ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको WhatsApp के थ्रू कुछ लर्निंग मटेरियल हम दे रहे हैं, कुछ चीजें दे रहे हैं, PDF के फॉर्म में दे रहे हैं, वीडियो के फॉर्म में दे रहे हैं, या किसी और डॉक्यूमेंट के रूप में हम दे रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत स्किल का जरूरत नहीं है या फिर कुछ ऐसा कुछ यूज नहीं करना पड़ता है। आप अपने मोबाइल में देखते हैं, व्हाट्सएप में आया, उस चीज को खोल के आप पढ़ लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी इसे यूज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, उनको कुछ टेक्निक लगाना पड़ता है। अब जैसे कि हम और आपके बीच में जब ये ऑनलाइन लर्निंग हो रहा है तो आपको Zoom ऐप के थ्रू हमें कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, एंड यू हैव टू नो सर्टेन टेक्निक्स कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे Zoom ऐप के थ्रू, तभी ऑनलाइन लर्निंग संभव हो पाता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें सर्टेन टेक्निक्स की जरूरत होती है अधिगम अनुभव को प्राप्त करने के लिए। फिर जैसे कि किस तरह का ये सर्टेन टेक्निक्स का जरूरत है, जैसे ऑनलाइन टूल्स की जरूरत होती है, जैसे एज टॉक्स है, क्लाउड मीटिंग है फॉर लर्निंग द कोर्स, और भी जैसे ये जूम क्लाउड मीटिंग हम लोग जिस ऐप से कर रहे हैं वो
ऐप का क्या नाम है, जूम क्लाउड मीटिंग। इसी तरह बहुत सारे और भी ऐसे ऐप है, गूगल पर भी है, जैसे गूगल का गूगल हैंगआउट है। तो इस तरह के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ऑनलाइन लर्निंग संभव हो पाता है। वर्चुअल लर्निंग किसे कहते हैं? वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, मतलब लर्निंग हो रहा है लेकिन फिजिकली आमने सामने क्लासरूम, फिजिकल क्लासरूम नहीं है, यह एक वर्चुअल क्लासरूम है। और वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू जो है लर्निंग संभव हो पा रहा है, यानी कि लग रहा है कि क्लासरूम है लेकिन क्लासरूम नहीं है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। ओके, तो ये वर्चुअल एक एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है। और इसका मतलब क्या होता है? द एडजेक्टिव वर्चुअल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट एग्जिस्ट इन एसेंस बट नॉट इन एक्चुअलिटी। एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब होता है उसका थोड़ा सा भाग। अगर हम Extract, ma'am. हाँ, एक्सट्रैक्ट, यस, वेरी गुड। Yes, ma'am. जैसे मान लीजिए कि हमें वेनिला आइसक्रीम बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा एसेंस डाल देते हैं ताकि उसमें किस तरह लगने लगता है फिर वो, कि वनीला का टेस्ट आता है। स्ट्रॉबेरी का थोड़ा एसेंस डाल देते हैं तो वो एकदम बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट देने लगता है। तो इसी तरह से वर्चुअल लर्निंग क्या है, वर्चुअल क्लासरूम क्या है, कि हम उसे क्रिएट करते हैं ये लगने के लिए कि एक्चुअल क्लासरूम वो देखने, लर्निंग संभव हो पाए, एक्चुअल लर्निंग संभव हो पाए, लेकिन रियली में वो क्लासरूम नहीं है। ओके, so that is called virtual learning. Virtual learning uses computer software, the internet or both to deliver instruction to student. और virtual learning के लिए दो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है और साथ ही साथ इंटरनेट की भी जरूरत होती है। जैसे अभी जब हम लोग लर्निंग कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया है। कंप्यूटर में भी जो है दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके मदद से मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, और साथ ही साथ हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट के द्वारा। तो तभी ये दोनों चीज की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट दोनों ही। This minimizes or eliminates the need for teachers and students to share a classroom. और वर्चुअल क्लासरूम जो है ये जो एक रियल क्लासरूम की जरूरतों को वो बहुत कम कर देता है। इससे हमें फिजिकली जो एक क्लासरूम में कौन कौन बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन सारी आवश्यकताओं को वर्चुअल लर्निंग के थ्रू हम कम कर सकते हैं। रिमोट टीचर ऑनलाइन, यानी कि इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड बाय अ टीचर बट दैट टीचर इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद द स्टूडेंट। यानी कि टीचर कहीं दूर है लेकिन वो ऑनलाइन है। तो इंस्ट्रक्शन जो है एक टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बट दैट टीचर इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद द स्टूडेंट, यानी कि फिजिकली जो है वो टीचर स्टूडेंट के साथ प्रेजेंट नहीं है। तो इसे हम वर्चुअल लर्निंग कहते हैं। नाउ ई लर्निंग कंपोनेंट्स, ई लर्निंग जो है वो कई तरह से हो सकता है। तो इसके प्रमुख अवयवों के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसके प्रमुख अवयव क्या है। व्हाट आर द important e-learning components? The first is the e-learning content, यानी कि e-learning विषय वस्तु, content यानी विषय वस्तु। दूसरा है e-tutoring, e-coaching and e-mentoring। तीसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग और चौथा है वर्चुअल क्लासरूम। तो ई लर्निंग जो है ये 4 प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला ई लर्निंग कंटेंट के रूप में, यानी कि विषय वस्तु के रूप में। दूसरा है ई ट्यूटरिंग, ट्यूटरिंग हम कर सकते हैं ई लर्निंग के थ्रू। ई कोचिंग हो सकता है, ई मेंटरिंग हो सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगी अधिगम हो सकता है, और वर्चुअल क्लासरूम के रूप में ई लर्निंग हो सकता है। ई लर्निंग कंटेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ई लर्निंग कंटेंट क्या है। ई लर्निंग विषय वस्तु क्या है? ई लर्निंग कंटेंट कैन इंक्लूड सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज, सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज हो सकते हैं।
इंटरैक्टिव ई लेसन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशंस हो सकता है और जॉब एड्स हो सकते हैं। सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज यानी कि बहुत ही सिंपल, आपको भेज दिया कुछ वीडियो फॉर्म में भेज दिया या पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया या फिर पावर पॉइंट के रूप में कुछ दे दिया। ओके, सो दैट इज सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज। और दूसरा है इंटरैक्टिव ई लेसन। ऐसे भी ई लेसन्स होते हैं जहां पर हो सकता है कि स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट करना पड़े, बीच में थोड़ा पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो जब तक आप उसका आंसर नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसे हम इंटरैक्टिव ई लेसन्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशंस और जॉब एड्स, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें क्या है। सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज, व्हाट आर दीज सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज? यानी कि सरल अधिगम स्रोत। सरल अधिगम स्रोत, सरल अधिगम स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज आर नॉन इंटरैक्टिव रिसोर्सेज सच एज डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोज और ऑडियो फाइल्स। यानी कि ये ऐसे सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिसमें जो कि नॉन इंटरैक्टिव होता है, जिसमें अंतःक्रिया की संभावना नहीं होती है, और इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, वीडियोज या ऑडियो फाइल्स का हम लोग यूज करते हैं। These materials are non-interactive in the sense that learners can only read or watch content without performing any other action. और ये जो रिसोर्स होते हैं, इस रिसोर्सों को ये इंटरैक्टिव नहीं होता, ये अंतःक्रिया इससे नहीं हो सकती है। सिर्फ लर्नर्स या तो इसे पढ़ सकते हैं या फिर उसे देख सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये इंटरैक्टिव नहीं होता है। These resources can be quickly developed and when they match defined learning objectives and are designed in a structured way. अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं इन्हें बहुत जल्दी बनाया जा सकता है और बहुत आसानी से भी बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा इसमें हालांकि कुछ रिसोर्सेज के लिए कुछ स्किल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्किल्स की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती है। और जैसा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार इसे तैयार किया जाता है और इसे बहुत ही संरचनात्मक रूप दिया जा सकता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है जिसके लिए हमने ई लर्निंग करना है, ई लर्निंग या क्लास लेना है, तो उसको देखते हुए हमारा आज का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इन रिसोर्सेज को हम तैयार करते हैं। और ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में तैयार होता है क्योंकि इसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप तैयार किया जाता है। They can be a valuable learning resource even though they don't provide any interactivity. इसके बावजूद कि इन तरह के लर्निंग रिसोर्स में कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग रिसोर्स, यानी कि ये इनका महत्व बहुत अधिक है लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए इनका महत्व बहुत अधिक है। नाउ दूसरा जो है वो है इंटरैक्टिव ई लेसन्स। इंटरैक्टिव ई लेसन्स क्या हुआ, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अंतःक्रिया होती है। The most common approach for self-paced e-learning is web-based training consisting of a set of interactive e-lessons. यानी कि इसके थ्रू जो है हम लोग वेब बेस्ड किसी भी वेबसाइट के थ्रू जो है हम लोग इंटरैक्टिव ई लेसन्स को तैयार करते हैं। An e-lesson is a linear sequence of screens which can include text, graphics, animations, audio, video and interactivity in the form of questions and feedback. यानी कि जो इंटरैक्टिव ई लेसन्स होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस ऑफ स्क्रीन्स होता है, एक के बाद एक बिल्कुल तय रहता है, पहले से रेखीय होता है। ये नहीं कि कभी ये कभी वो, नहीं, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। ओके, विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट,
graphics, animations, audio, video and interactivity in the form of questions and feedback. यानी कि आपको टेक्स्ट दिया जाता है, कुछ ग्राफिक्स दिया जाता है, कुछ एनिमेशन दिया जाता है, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे जो है फीडबैक भी मिलता रहता है। E-lessons can also include recommended reading and links to online resources as well as additional information on specific topic. जो E-lessons, जो इंटरैक्टिव E-lessons होते हैं, पढ़ाते वक्त जो है या जो भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को, उसमें रिकमेंडेड रीडिंग यानी कि उनको बोला जाता है कि अगर आप इस चीज को पढ़ लेंगे, कुछ लिंक दे दिया जाता है, उस पेज पर लिंक दे दिया जाता है कि अगर आप इस चीज को पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से लिंक दे दिया जाता है या फिर कुछ रिकमेंडेशन दिया जाता है कि इस चीज को आप पढ़ लीजिए, यहाँ से आप इस चीज को पढ़ लीजिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तीसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन। सिमुलेशंस का मतलब होता है अनुरूपण, यानी कि जो रियल है उसके अनुरूप, रियल नहीं है लेकिन उसके अनुरूप करना। तो सिमुलेशंस आर हाईली इंटरैक्टिव फॉर्म्स ऑफ ई लर्निंग। ये भी इंटरैक्टिव फॉर्म्स होते हैं ई लर्निंग के। द टर्म सिमुलेशन बेसिकली मीन्स क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड, अलाउइंग द लर्नर टू लर्न बाय डूइंग। यानी कि ऐसा लगता है लर्नर को कि हम रियल वर्ल्ड में हैं, लेकिन एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता है, लेकिन उसे आभास होता है कि हम रियल वर्ल्ड में हैं। इसे और अगर वो कोई भी स्किल्स सीखना हो या कुछ इस तरह की चीजें सीखनी है जो कि उसे लगता है कि जब हम रियल वर्ल्ड में जाकर उसे यूज करेंगे तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाए हमसे, तो इसलिए वो गलतियां ना हो रियल लाइफ में या जहां पर उसे रियली में यूज करना है, तो उन गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए पहले एक सिमुलेटेड लर्निंग के रूप में उसे प्रैक्टिस करवा लिया जाता है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशंस कहते हैं। Simulations are a specific form of web-based training that immerses the learner in a real-world situation and respond in a dynamic way to his or her behavior. यानी कि सिमुलेशन जो है यह वेब बेस्ड ट्रेनिंग है जहां पर लर्नर को लगता है कि हम एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आ गए हैं। वो परिस्थितियों में उसे लगता है कि हम रियल के परिस्थिति में हैं और जब इस तरह की चीजें हमें करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। तो इस तरह से उसे एक प्रैक्टिस हो जाता है रियल लाइफ में करने के पहले, उन चीजों को वो वेब के थ्रू वो प्रैक्टिस कर लेता है। सिमुलेशंस इन ई लर्निंग। Simulations in e-learning मतलब mimic the environment and conditions of real life to allow learners to explore, learn and practice, thus preparing them for on-the-job tasks they are likely to encounter. यानी कि सिमुलेशंस का मतलब होता है कि रियल एनवायरनमेंट को मिमिक करना। आप सभी जानते हैं मिमिक का मतलब क्या होता है, उसको नकल करना, ताकि जो लर्नर्स हैं वो ये समझकर कि रियल लाइफ में अगर मुझे ये चीज मिलेगा तो हम कैसे इन चीजों को करेंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे, और ये इस तरह से वो एक्सप्लोर करते हैं, लर्न करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं रियल लाइफ में जाने के पहले। और इस तरह से कब हमें सिमुलेशंस ई लर्निंग में सिमुलेशंस को यूज करना चाहिए? जब एम्प्लॉइज नीड टू मास्टर स्किल बेस्ड टास्क। जब एम्प्लॉइज जो होते हैं वो उनको लगता है कि हमें कौशल संबंधी कार्यों को सीखना है, तो हमें सिमुलेशंस की आवश्यकता होती है। फिर जब कोई प्रोसेस ऐसा है कि जो कि बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, तो हमें सिमुलेशंस की आवश्यकता होती है। जब ऐसा कुछ है जहां पर टॉलरेंस, अगर गलती की है तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जब स्किल सीखना है, कुछ इस तरह का कुछ सीखना है, तो पहले हम सिमुलेटेड वे में उसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि रियल लाइफ में कुछ गलतियां ना हो। टू ऑफर एन एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि एक एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करने के लिए भी हमें
सिमुलेशंस की आवश्यकता होती है। जॉब एड्स क्या है? जॉब एड्स प्रोवाइड जस्ट इन टाइम नॉलेज. They can take several forms and be delivered on different platforms, that is computer, printed document, mobile phone. They usually provide immediate answers to specific questions, thus helping users accomplish job tasks. Technical glossaries and checklists are a few examples of simple job aids, but sophisticated expert system can also be developed to assist workers in complex decision making. यानी कि अगर कोई काम करना हो और उस काम को करने के लिए कुछ सहयोगी चीजों की आवश्यकता है, तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें ताकि स्टूडेंट जो है या जो भी एम्प्लॉइज है उस काम को अच्छे से कर लें, इसके लिए कुछ हो सकता है कि कुछ व्हाट्सएप के रूप में या ईमेल के थ्रू कुछ ऐसी चीजों को वो भेज देते हैं ताकि उसे उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए, वो जॉब जो है उसे अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि जो कार्य करना है उस कार्य को वो अच्छी तरह करने के लिए कुछ सहायता भेजी जाती है। वो कंप्यूटर के थ्रू भेजे जा सकते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजे जा सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भेजे जा सकते हैं, या फिर कुछ टेक्निकल ग्लॉसरीज समझ में आता है कि अंत में जब किसी भी शब्द का अच्छे से मीनिंग जब लिखा रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको समझने के लिए भेज दिया जाता है, टेक्निकल ग्लॉसरीज भेज दिया जाता है, चेकलिस्ट भेज दिया जाता है ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर ले। तो ज्यादातर तो ये आसान होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी सोफिस्टिकेटेड एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा भी इसे तैयार किया जाता है और भेजा जाता है। हम लोग के पास अब 10 मिनट समय है। ओके, अपग्रेड कर ले क्या? ओके, नाउ e-tutoring, e-coaching and e-mentoring services which provide human and social dimensions can be offered to learners to support them through the learning experience. यानी कि जब ऑनलाइन के थ्रू जब मानवता दिखलाना है या सामाजिक तत्व दिखलानी हो, तो हम लोग इन सारी चीजों का उपयोग करते हैं। ई ट्यूटरिंग, चूंकि ये ट्यूशन जो है 1 to 1 होता है, या ई कोचिंग है, या ई मेंटरिंग है, किसी को हमको मेंटरिंग करना है, तो हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजें जो हैं, प्रोवाइड ई ट्यूटरिंग, ई कोचिंग, ई मेंटरिंग प्रोवाइड इंडिविजुअल सपोर्ट and feedback to learners through online tools and facilitation techniques. यानी कि इन सारी चीजें ऑनलाइन के थ्रू हम लोग जिसे भी देना हो उसे हम दे सकते हैं। तो जब मानवता और सामाजिक तत्व की आवश्यकता होती है, तब हम लोग ई ट्यूटरिंग, ई कोचिंग और ई मेंटरिंग करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगी अधिगम, सहयोग के द्वारा जो अधिगम होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही, इसे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज रेंज फ्रॉम डिस्कशन एंड नॉलेज शेयरिंग टू वर्किंग टुगेदर ऑन ए कॉमन प्रोजेक्ट। सोशल सॉफ्टवेयर सच एज चैट, डिस्कशन, forums and blogs are used for online collaboration among learners. कोलैबोरेटिव लर्निंग के डिफरेंट वेज हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऑनलाइन डिस्कशंस are designed to facilitate communication and knowledge sharing among learners. यानी कि दोनों तरह के जो ऑनलाइन डिस्कशन है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, यानी कि एक साथ सभी बैठकर ऑनलाइन के थ्रू एक साथ सभी मिलकर जो है जब किसी कार्य को करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, जिसे हम सिंक्रोनस करते हैं। और एसिंक्रोनस का मतलब हुआ चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब जिसने खोला और उस वक्त जो है वो डिस्कशन कर सकता है।
तो इसे हम एसिंक्रोनस डिस्कशन कहते हैं। और इस तरह के डिस्कशन जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग में मदद करते हैं। लर्नर्स कैन कमेंट एंड एक्सचेंज आइडियाज अबाउट कोर्स एक्टिविटीज और कंट्रीब्यूट टू ग्रुप लर्निंग बाय शेयरिंग देयर नॉलेज। और इस तरह के लर्निंग में जो लर्नर्स होते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं इस तरह के कोर्स एक्टिविटीज में, ताकि सबका लर्निंग हो। यस, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? Yes, ma'am. इज इट ओके? इज इट ओके? मैम एक बार सेकंड स्लाइड फिर से रिपीट कर दीजिएगा। पीछे वाला? नहीं मैम, यही वाला सेकंड बुलेट। सेकेंड वाला, अच्छा। तो लर्नर्स जो है इस तरह की जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। ऐसा फोरम होता है, सिंक्रोनस है तो वो तो खुद उसी वक्त जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि अभी हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो एवरीबडी कैन कमेंट, एक एक करके कमेंट कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनस हो गया। एसिंक्रोनस हो गया कि जब एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हर कोई कमेंट वहां लिख सकता है और इस तरह से सारे लोगों को वो मदद कर सकता है लर्निंग में और अपने नॉलेज को वो शेयर करता है। ओके, आगे बढ़े? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग डिफरेंट वेज में एक कोलैबोरेशन है जहां पर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वर्क इंप्लाइज कोलैबोरेशन अमंग लर्नर्स टू परफॉर्म अ टास्क। यानी कि मान लीजिए कि लर्नर्स को मिलकर एक कोई टास्क दिया गया है और इस टास्क को प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। उस प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए सभी की सहयोग की आवश्यकता है। तो ये भी एक कोलैबोरेशन के रूप में सभी लोग को जो जो काम मिला है सभी लोग जो है इस चीज को कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज कैन इंक्लूड प्रोजेक्ट वर्क एंड सिनेरियो बेस्ड असाइनमेंट। सिनेरियो बेस्ड असाइनमेंट का मतलब है कि जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अगर कुछ भी काम कोलैबोरेशन में करना हो तो हर जितने भी लर्नर्स हैं, मान लीजिए किसी 10 लोग को कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है तो हर लोग अलग अलग अपने अपना काम कर रहे हैं और मिलकर उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसे ये भी एक कोलैबोरेशन हो गया। और फिर और अगला क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है। ये भी, इसे भी हम कोलैबोरेशन ही कहेंगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम इज एन ई लर्निंग इवेंट वेयर एन इंस्ट्रक्टर टीचेस रिमोटली and in real time to a group of learners using a combination of materials. Example, PowerPoint slides, audio or video material. It is also called synchronous learning. यानी कि ये अभी जो हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ अपने घर में, आप लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके और मेरे सहयोग से ये लर्निंग चल रहा है। और ये लर्निंग किसके थ्रू चल रहा है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि बहुत सारे सामग्रियों की इसमें आवश्यकता होती है। जैसे कि पावर पॉइंट स्लाइड हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकता है, वीडियो मटेरियल्स हो सकता है। और ये सिंक्रोनस है, यानी कि सभी का प्रेजेंस होना एक ही समय में जरूरी है। यानी कि जो टीचर है और लर्नर्स है सब लोग एक ही समय में मौजूद है, तभी ये वर्चुअल क्लासरूम संभव हो पाता है। दिस मेथड रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट टू कन्वर्ट मटेरियल्स। अब यहाँ पर जो है इस कोलैबोरेटिव वर्चुअल क्लासरूम में जो मटेरियल्स है उनको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लिए जो टीचर या इंस्ट्रक्टर है उनको पहले से तैयारी करके रहनी पड़ती है, नहीं तो तुरंत ये नहीं हो सकता है। पहले से वो तैयार कर ले, पावर पॉइंट तैयार कर ले, वीडियो दिखलाना है वीडियो तैयार कर ले, ऑडियो फाइल है ऑडियो फाइल तैयार करके पहले से रखे रहेंगे तो ही ये संभव हो पाता है। Appropriate technology must be in place for both the learners and providers.
एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर फॉर द वर्चुअल क्लासरूम एंड गुड कनेक्टिविटी। अब लेकिन वर्चुअल क्लासरूम तभी संभव होगा जब टीचर और लर्नर दोनों के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का है। इसके लिए अब जैसे कि स्मार्टफोन या लैपटॉप की आवश्यकता है, इंटरनेट की आवश्यकता है, जूम ऐप की आवश्यकता है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तभी जो है, और साथ ही साथ गुड कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तभी ये संभव हो पाता है। Now quality of e-learning, quality of e-learning course is enhanced by, अब कैसे क्वालिटी e-learning की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? लर्नर सेंटर्ड कंटेंट हो, इधर उधर की चीजें ना हो, जो लर्नर को जरूरत हो बस उसी पर केंद्रित हो। जितनी भी विषय वस्तु इसमें जो भी कंटेंट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल अध्येता केंद्रित हो, तभी जो है उस, और ये ई लर्निंग करिकुला शुड बी रेलेवेंट, यानी कि ये रेलेवेंट होना चाहिए और स्पेसिफिक टू लर्नर नीड्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्रोफेशनल लाइफ। Skills, knowledge and information should be provided to this end. यानी कि आवश्यकता के अनुसार, लर्नर के आवश्यकता के अनुसार ही जो विषय वस्तु है वो होना चाहिए। फिर दूसरा है ग्रैनुलैरिटी, यानी कि ग्रैनुलैरिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल विस्तार पूर्वक वर्णन होना चाहिए। अगर ऐसी शब्दों को हम उसमें लिख दें जो कि लर्नर समझे ही नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ई लर्निंग कंटेंट है इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन उसका होना चाहिए विषय वस्तु का। ई लर्निंग कंटेंट शुड बी सेगमेंटेड टू फैसिलिटेट एसिमिलेशन ऑफ न्यू